welcome to my channel Physics Class. So before we start, may I request to subscribe my channel. Okay. So let us begin. We have already understood about force in the previous class. Force is nothing but what? It is push or pull on any object. Then we studied about the types of force, types or categories of force, classification of force, which are balanced kind of force and unbalanced force. Balanced force cannot produce acceleration. That means balanced force, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर बैलेंस फोर्स लगता है तो नेट फोर्स कितना होता है? जीरो. ओके. इन केस ऑफ बैलेंस फोर्स नेट फोर्स इज जीरो. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस क्लास. उसके बाद आता है अनबैलेंस्ड फोर्स, सेकंड कैटेगरी. ओके. अनबैलेंस्ड फोर्स इन विच द नेट फोर्स इज नॉट जीरो एंड दैट फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू change its position. We studied that. Also remember very important point that in case of uniform motion, what kind of force act, that is important. In case of rest or at uniform motion or in uniform motion, only balanced force acts. Okay, remember. So now what is the unit of force? SI unit. If I talk about SI unit, SI means what? It's a standard unit. International System of Unit. Full form is International SI, International System of Unit. So every kind of physical quantity have a SI unit. So here the force. Actually, the SI unit of force is derived from Newton's second law of motion. We'll study it later how it was derived. But let us write the unit first. That is nothing but Newton. As it was. These theories were studied by Sir Isaac Newton. That's why on his name the unit is that means denoted. It is denoted by capital N. Okay. So if I write the CGS unit, CGS unit is the smaller unit, centimeter gram second. Okay. Smaller unit. How can I write? That is Dyn, D-Y-N. In short form, we denote it by dyn. Only dyn. E is removed when we denote it by in the short form, like Newton n. Dyn, dyn. Dyn. Pronunciation will be same. Now we talk about how much is one dyn. One dyn is equal to nothing but 10 to power 5 minus 5 Newton. Okay, one dyn is 10 to power minus 5 Newton. If I cross multiply this, what I get that 1 Newton is how much? 1 is cross multiplied. You know cross multiplication. 1 Newton will be 10 to power plus 5. This will be crossed. It will be in denominator, and if you take it in the numerator, the exponent or the powers sign will get positive. 10 to power 5 9. So these things you have to remember while doing numericals. Conversion is very important. Okay, there are lots of numerical in class 9 also, so you should remember these things. Okay, now let us proceed to the topic frictional force. Let us just मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करूंगा फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में. ओके, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन सिंपली है फ्रिक्शन. व्हाट इज फ्रिक्शन? ऑल ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड फ्रिक्शन इन योर डे टू डे लाइफ. डू एक्सपीरियंस और नॉट? यस. सो फ्रिक्शन इज नथिंग बट एन ऑपोजिट फोर्स which acts on an object, an opposing force which acts between the surfaces in contact. Okay, there are, suppose we are walking, our bottom of the foot and the earth ground surface, there are two surfaces now. So friction always acts between two surfaces. Okay, and frictional force is that kind of force which opposes the motion of first surface over the another surface. That means if an object is, suppose this is a table. Okay, this is a table and you are pushing a book. Okay, so book's surface, here you are pushing the book like this, or this marker pen you are pushing like this on the table. Okay,
So the frictional force will just act opposite to this direction of applied force. You are applying force like this, so the frictional force will be just opposite to the, suppose table and a object you are pushing. So this is the applied force, F, suppose A, applied for external force. So at the same time, between the surface of the book and the table, there will be a force of friction. Suppose I denote it by small f. Generally, frictional force is denoted by small f in your higher classes, 11th class. Okay. So small f is what? Frictional force. Remember. So frictional force, you write down that the opposing force which acts between surfaces in between two, here you write two surfaces in contact, two surface in contact, two surface in, so two surfaces in contact. Okay, it is here is write that the frictional force acts opposite to the applied force. Examples. What are some examples of frictional force? Lots of example. Walking, we are able to walk only because of frictional force. We are able to suppose drive car. We are able to everything in our day-to-day life is only possible because of friction. If there was no friction, we would not be able to. So what is the cause of friction here? Cause of friction. We understood about the what is frictional force. What is the cause of friction? That the roughness of the surfaces in contact. जो surface के contact होता है जब, तो उन दोनों surfaces का roughness कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है, उसके ऊपर फ्रिक्शन, वही है हमारा फ्रिक्शन का कॉज. लेकिन हमें क्लास 11 में कोई और थ्योरी मिलेगा. ओके, दैट इज क्वाइट न्यू, एंड बट फॉर क्लास 9 दिस थ्योरी is perfect for explanation of friction, that the roughness of surface is the cause of friction. Okay, remember friction doesn't depend on the area of the surfaces in contact. एरिया दो सरफेस सपोज इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर. हाँ, इस टेबल का एरिया कितना है? इस टेबल का एरिया है सपोज 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर. दैट, तो इससे ये पता नहीं चलता है कि मतलब टेबल का फ्रिक्शन ज्यादा होगा या फिर बुक का फ्रिक्शन ज्यादा होगा. नो, एरिया पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता. ठीक है. अच्छा, next friction types of friction are there. Certain types I'm just telling you, it is not in the syllabus of your class 9. Types of friction are first of all static friction is there. Static friction means when an object is at rest, okay, and you are just trying to push it at that time. Static friction acts. Then second is kinetic friction, when the object starts moving, when the object have already started moving, and at that time the force of friction which is coming in effect, okay, between the surfaces, that is what? Kinetic friction. Then rolling friction, wheel and road, wheel of vehicles and road. In that case, what kind of frictional force acts? That is rolling friction. Okay, so every kind of object which is rotating, okay, over another surface, at that place what kind of frictional force will act? That is rolling friction. So these are the types of friction. Now let us proceed to the another topic, that is we have understood about force. No? Now what is the next topic? That is laws of motion. Okay, Newton's laws of motion.
Newton's laws of motion. In that, first of all, we will study about Galileo's law of inertia. Galileo's law of inertia. It's very important concept. To understand the first law of motion, you should know about what Galileo's law of inertia, what Galileo did. Okay. Actually, inertia concept of inertia was developed by Galileo Galilei, a philosophist and physicist. What he did, he performed certain experiments, okay, on inclined plane. What is an inclined plane? Suppose you have a plane like this. This plane is inclined to the suppose horizontal surface. This is the horizontal surface or the ground surface, and you are putting a wooden bead like this, okay, and what you are doing, you are putting a frictionless, generally frictionless ball is not possible, but still frictionless ball, I will assume frictionless ball, you put it here, what will happen, this will go slide down, it will start sliding down, and ये ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, यहाँ से फिर इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये इंपॉर्टेंट था। गैलीलियो ने देखा, उसने इसी एक्सपेरिमेंट्स को 2-3 बार परफॉर्म किया। अच्छा, पहले केस में सपोज बॉल यहाँ पहुंचा, सेम हाइट तक पहुंचेगा, मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, तो बॉल सेम हाइट कहाँ पे है, यहाँ पहुंचा, फर्स्ट केस। सेकंड केस में उसने वहीं से छोड़ा बॉल को एट द सेम पॉइंट, सपोज ए, पॉइंट ए से ही छोड़ा, दूसरा इंक्लाइन प्लेन लिया उसने कुछ ऐसा, उसने देखा बॉल इतना ही हाइट पे पहुंचा, तीसरा प्लेन लिया, उसने देखा बॉल इतना ही हाइट पर पहुंचा, इस केस में भी चौथा प्लेन लिया, पूरा हॉराइजॉन्टल ले लिया, पूरा हॉराइजॉन्टल। चलो 3 केस की बात करते पहले। पहला केस में हाइट, सपोज हाइट देखो, तीनों का हाइट कितना है, सेम। पहला केस में 1 2 3, फर्स्ट केस में बॉल सपोज इतना ऊंचा गया, सेकंड केस में बॉल उतना ही ऊंचा गया, लेकिन ये बात देखो कि ऊंचा तो उतना ही गया, लेकिन डिस्टेंस इसने ज्यादा तय किया है कि नहीं, दिस डिस्टेंस इज मोर देन d2 is more than d1 or not, d2 is more than d1, सीधा सीधी देख रहा है ना। सपोज दिस इज d3, अब देखो d3 तो दोनों से ही ज्यादा बड़ा है, डिस्टेंस इतना ज्यादा तय किया, क्यों, ताकि वो सेम हाइट अटेन कर सके बॉल, तो d3 इज मोर देन d2 इज मोर देन d1, बट बॉल इज अचीविंग इट्स हाइट, नो, दैट मीन्स उसको अपना हाइट अटेन करना ही है, ठीक है। तो गैलीलियो ने फिर क्या किया, उसने एक कंक्लूजन दिया, यहाँ से कंक्लूजन दिया क्या, कि अगर बॉल एक फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये सारा फ्रिक्शनलेस सरफेस है, हाँ, अगर एक बॉल फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर छोड़ दिया जाए ऐसे, मतलब यहाँ से छोड़ा जाए और यहाँ से इंक्लाइन प्लेन को बिल्कुल पैरेलल बना दिया जाए, ओके, तब क्या होगा, ये बॉल जाते जाएगा, इट विल गो टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, it won't stop now. Why it won't stop? Because it want to attain this height. अब क्या ये लाइन तो पैरेलल है, ग्राउंड सरफेस के पैरेलल है, क्या ये इस हाइट तक पहुंच सकेगा कभी भी? नो, बॉल ये इस हाइट तक पहुंच ही नहीं सकता है, isn't it? So the ball will go and go so on to achieve this much height. Okay, so what he concluded that an object इन द स्टेट ऑफ, अब ये बॉल क्या में हो गया, जैसे यहाँ से ये उस हाइट को अटेन करने के चक्कर में ये बॉल क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन में हो गया, यूनिफॉर्म मोशन में। सो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, उसने बोला कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ऑब्जेक्ट अगर कोई बुक है टेबल पे रहेगा, और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहता है, ठीक है। तो उस टेंडेंसी को उसने बोला, ऑब्जेक्ट्स के इसी टेंडेंसी को उसने क्या बोला, इनर्शिया बोला। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ये जस्ट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जस्ट यू कैन से थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है,
समझने के लिए, इनर्शिया को समझने के लिए, ठीक है। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए ये पॉसिबल है। ओके, उसी इसी इसी एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो ने इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया को डेवलप किया। तो इनर्शिया का लॉ, इनर्शिया क्या है, उसने क्या बोला, द inability to change the state of rest or of uniform motion is called inertia। उसने इनर्शिया को ऐसे डिफाइन किया, the inability of a body to change by itself the state of rest or of uniform motion is called inertia। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट तो वो अपना मोशन को बनाए रखने की कोशिश करता है। जस्ट लाइक कार चला रहा है, इंजन को स्विच ऑफ कर दिया, क्लच को दबा कर रखा है, और तो क्या कार अपने आप रुक जाएगा? नो, वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। वो अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स का बात है वो किसने बोला? इसी लॉ को न्यूटन ने लिया, इसी लॉ को। दिस लॉ वाज फर्दर स्टडीड बाय न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, एंड he developed three laws of motion। So what Newton did? Newton studied Galileo's law and developed three laws of motion। ये जो तीन लॉ ऑफ मोशन है, अब तक till now they have not proved to be wrong। All the three law explains us the complete motion of an object in straight line। Remember, we are talking about what? Motion in a straight line। So for object's motion in a straight line, the three laws of motion are completely applicable and have not been denied till now, or not proven wrong। So first of all, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हाँ, पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ motion। Newton's first law of motion, what it states? The statement is in your book also, I can write it that. Okay, the statement first, let us understand what it tells, that if an object is at rest, okay, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। ऑब्जेक्ट अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है, लेकिन वो कौन सा, किस टाइप का मोशन की बात करें हम लोग? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो वो कब तक ऐसा होगा? जब मान लो कोई बुक टेबल पर है, कब तक वो रेस्ट में रहेगा? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना अप्लाई हो और वो मूव ना करने लगे, समझे। अगर ऑब्जेक्ट कोई मोशन में है, जब तक हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया तो ऑब्जेक्ट मोशन में रहना चाहेगा। हाँ, अगर देखो फ्रिक्शन की बात फिर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स रोक देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को, अपोज कर देता है। सपोज एक क्रिकेट बॉल को हमने या फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल कुछ दूर जाके तो रुक जाएगा ना, isn't it, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। सो वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने पुश किया तो, या फिर फोर्स अप्लाई किया, तो वो ऑब्जेक्ट उसी टेंडेंसी में रहना चाहता है कुछ देर तक। प्रैक्टिकली भी कुछ देर तक ऐसा, हम लोग दौड़ते हैं, अचानक तो नहीं रुक जाते हम लोग। दौड़ने के बाद फिनिशिंग लाइन के कुछ दूर बाद भी हम लोग थोड़ा दौड़ना पड़ता है, ठीक है, वो भी अलग बात है। सो ये सब एग्जांपल्स है। तो स्टेटमेंट क्या है? एन ऑब्जेक्ट tends to be in the state of rest or of
uniform motion in a straight line until and until acted upon until acted upon by an external force to change the state change the state. First law of motion states that an object tends to be in the state of rest or of uniform motion in a straight line until acted upon by an external force to change the state. So this is the statement of first law. There are lots of examples and which are very important in your exam which may come. So those examples are for Newton's first law of motion. First example is the most important example. Suppose examples. From the example only question comes, reasoning questions like suppose you are traveling in a bus and the bus suddenly applies a brake. Okay. What happens? We move forward, backward. We move forward. Okay. Similarly, when the bus suddenly starts moving, we move backward. हम पीछे झुक जाते हैं. हम लोग आगे झुक जाते हैं कब? जब ब्रेक लगाते हैं बस में और अचानक बस चलना शुरू हो जाता है तो हम लोग पीछे झुक जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया. बिकॉज फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट द लॉ ऑफ इनर्शिया इज जनरली. बस वहाँ पे क्या ऐड किया गया है? एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. इतना ही मॉडिफिकेशन है न्यूटन द्वारा. न्यूटन ने बस इतना ही मॉडिफाई किया स्टेटमेंट को. बाकी सब तो इनर्शिया ही है ना. सो गैलीलियोस फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. जस्ट इसने क्या किया यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की बात किया न्यूटन ने. तो ये जो बस का जो सिचुएशन है ओके दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इनर्शिया. ओके सो क्वेश्चन कम्स लाइक व्हाई पैसेंजर्स इन बस ओके सडनली get jerked forward or backward when brakes are applied or bus suddenly starts moving like that. Question comes. So this is the question in your textbook also in text question. So what you write? This is due to inertia of rest. अगर ऑब्जेक्ट अगर हम लोग रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं. ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो बस रुका हुआ है और आप सीट पे बैठे हुए हो तो आपका बॉडी के पास कौन सा इनर्शिया? देखो इनर्शिया का 3 टाइप्स होता है. रिमेंबर इनर्शिया का कितना टाइप होता है? 3 टाइप्स. व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन. तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. क्या? डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ रेस्ट कब होता है? जब ऑब्जेक्ट कोई अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है. दूसरा मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है. तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ये कब होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सडन टर्न होता है. सडन टर्निंग. सपोज एक बस सडनली टर्निंग ले रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आगे पीछे तो नहीं झुकते. हम लोग किधर झुकते? ऐसे या फिर ऐसे हो जाते हैं, है ना. सो दैट इज इनर्शिया डायरेक्शन. हम लोग का बॉडी तो सेम मतलब रेस्ट में मोशन में है ना. अगर जब बस चल रहा है तो ऑब्जेक्ट हमारा बॉडी तो मोशन में है, इनर्शिया मोशन में है. लेकिन सडनली इनर्शिया डायरेक्शन मतलब सडनली डायरेक्शन चेंज होता है तो हमारा बॉडी अपना पोजीशन में रहने की चाहत की वजह से अपना पोजीशन में रहना चाहता है, इसीलिए हम लोग ऐसे या फिर ऐसे हो जाते हैं. ठीक है. सो दैट इज in that case inertia direction is applied. Now one more question is there. Why the leaves of a tree get detached when we jerk it from the bottom? पहले हम लोग आम तोड़ने के लिए या कुछ करने के लिए whatever you have to pluck it and you are not able to reach or you don't have any stone to throw it. So what we do? We jerk the tree to get something. Okay, so that is why they do. Also the leaves of the plant are at rest or the fruits in the plants are at rest. Okay, so they have inertia of rest. When you suddenly jerk it, they want to be at rest. For that tendency they get detached. Okay,
क्वेश्चन इज देयर, वन मोर क्वेश्चन इज देयर, व्हाई अगर हम लोग के पास एक मैट्रेस है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखा है, धूप में डालने के बाद हम लोग मम्मी लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे मारते हैं, जब वो लोग मारते हैं तो क्या निकलता है, धूल निकलता है इतना। वो धूल कहाँ से निकलता है, अपना ही धूल है, हम लोग का देह से ही गया है वो, ठीक है, हम लोग का बॉडी से ही वो धूल जाता है मैट्रेस में। ओके, सो हाउ वी हाउ दैट डस्ट कम्स आउट, बिकॉज द डस्ट आर एट रेस्ट, suddenly you beat it with a stick, what happens, suddenly they cannot be in motion because they have inertia of rest, so to be at rest they come out of the mattress or the whatever compel, whatever what it is. Okay, so that is one more question. Okay, that is very important. Now suppose you have a you are playing carom. Okay, you are playing carom board, and in that case what there is a game na, we what we do, we put a stack of the carom coins like this. हाँ, उसको ऐसे रखते हैं, स्टॉक, एक स्टॉक बना देते हैं ऐसे, और हम लोग क्या करते हैं, उस हेड से हम लोग क्या करते हैं, उसको मारते हैं, तो क्या होता है, नीचे वाला सिर्फ निकलता है। कभी ऐसा हुआ है तुम लोग के साथ, मेरे साथ तो हुआ है, मैंने ऐसे मारा है तो सिर्फ नीचे वाला निकला है, पिन निकला है सिर्फ, तो बाकी सब एज इट इज नीचे बैठ जाता है। फाइन, बिकॉज वो जो स्टॉक है कैरम कॉइन का, वो तो रेस्ट में है, सडन तुमने को मारा, बिकॉज कैरम का कॉइन का फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, तो सब फट से निकल जाता है, लेकिन बाकी सब रेस्ट नहीं रहना चाहता है, इस बिकॉज सिर्फ एक पॉइंट पे ही फोर्स एक्ट हुआ तो उसने एक को निकाला। ठीक है, वो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर हमारे पास क्वेश्चन ये भी है कि एक ग्लास टम्बलर है, एक ग्लास टम्बलर है, उसके ऊपर हमने एक कार्ड, सपोज एटीएम कार्ड रख दिया, एटीएम कार्ड या फिर कोई भी कार्ड, और उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया 1 रुपये का या फिर 5 रुपये का कॉइन रख दिया, तो कार्ड को ऐसे फ्लिक करेंगे, कार्ड को फ्लिक करेंगे, क्या कॉइन को भी साथ में जाना चाहिए था, यस, बट कॉइन उसी ग्लास के अंदर गिर जाता है। ऐसा क्यों, बिकॉज कॉइन तो, कॉइन के पास कौन सा इनर्शिया है, कॉइन के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, दैट्स व्हाई the coin wanted to be at rest, and due to that tendency the coin got into the glass tumbler and card got flicked out, कार्ड चला गया लेकिन coin नीचे गिर गई ग्लास के अंदर। so that is one more question that comes in your exam, so very important questions are these. Okay, now what we discuss about inertia and mass, very important, inertia and mass, this is very important concept, you should know about inertia and mass. So topic is inertia and mass. अब inertia क्या होता है हमको पता है, inertia क्या होता है, tendency of the body to the that means inability of the body to change by itself, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का inability अपना पोजीशन को बरकरार मतलब चेंज करने के लिए। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अपने आप अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, वही इनर्शिया। इनर्शिया और मास, मास कैसे रिलेटेड है इनर्शिया से, तो अगर हम इसीलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक ट्रेन है हमारे पास, तो ट्रेन नहीं लेते, एक ट्रक लेते हैं और एक छोटा सा कार, कार को हम अकेले पुश कर सकते हैं एक आदमी, यस, बहुत जोर लगाएंगे तो पुश आराम से हो जाएगा। चलो हमने 1000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, एग्जाम्पल, हमने 1000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, पीछे से कार को पुश किया, कार तो पुश हो गया, कार तो इजीली हमने पुश कर दिया। अब हमने 1000 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई किया ट्रक पे, ट्रक को हिला भी नहीं पाया, ऐसा क्यों, बिकॉज ट्रक का मास ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो ट्रक का मास ज़्यादा है तो उसका टेंडेंसी रेस्ट में होने का भी ज़्यादा है, इजंट इट, आर यू गेटिंग और नॉट, कि ट्रक का मास ज़्यादा है तो उसका टेंडेंसी टू बी एट हिज ओन स्टेट इज ऑल्सो मोर, दैट मीन्स व्हाट, इट्स इनर्शिया इज मोर। सो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, दैट मास ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, कि मोर इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, मोर is the mass of an object, more will be its
इनर्शिया। मोर इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोर विल बी इनर्शिया। मान लो मास को 10 टाइम बढ़ाया, इनर्शिया 10 टाइम्स बढ़ेगा, 15 टाइम्स बढ़ाइए 15 टाइम्स बढ़ेगा। मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है, ये प्रोपोर्शन साइन का मतलब क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन मैथ में पढ़ा हुआ है कि अगर ये क्वांटिटी जितना अमाउंट में बढ़ेगा ये भी उतना ही अमाउंट में बढ़ेगा। दैट इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स। मोर इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोर विल बी इनर्शिया। हमने अभी एग्जांपल दिया कार और ट्रक का, उससे ये पता चला कि ट्रक का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, कार का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या है, कम है। इजंट इट? सो इसको इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है हमेशा, ताकि ऐसा क्वेश्चन इनर्शिया और मास के बारे में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है तो उसको ये कर सके, तुम लोग लिख सको। ठीक है, अभी इसमें मास क्या होता है, तो मास क्या होता है अगर हम लोग इनर्शिया के टर्म में लिखे, हमने क्या बोला, मोर इज द मास मोर इज द इनर्शिया। तो इनर्शिया को मेजर कर सकते हो, अगर इनर्शिया का अगर मैं मेजर कर सकता हूँ तो मैं वही जो मेजरमेंट होगा वो मेरा मास होगा ऑब्जेक्ट का। आर यू गेटिंग? ये पेन का इनर्शिया अगर मेजर कर सकता हूँ अगर मैं, तो अगर इस पेन का इनर्शिया, मार्कर पेन का इनर्शिया मेजर कर लेता हूँ तो उसका मास भी कितना है वही पता चलेगा मुझे। ठीक है, तो उसका मास कितना है वही होगा उसका इनर्शिया। सो इनर्शिया, measure of inertia, measure of inertia is nothing but mass of an object. ओके, अगर मैं इसका बेसिक डेफिनेशन लिखूं मास का मोस्ट बेसिक डेफिनेशन क्या है पता है, पहले से पढ़ा हुआ मास क्या होता है, मास क्या होता है, मास इज व्हाट द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इस मार्कर पेन में कितना मास, दैट इज व्हाट, इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर था, दैट इज मास।